Yes, people, very good evening to all of you. Can you hear my voice? Am I audible to you? Sir. Yes. Am I audible to everybody? Yes, sir. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening. Yes, what? Just 1 second. Just 1 second. Hello, sir. Hello. Just give me a second. Sir. Yeah, I'm hearing some voices, some background noises. Okay, I request to everybody, please evening, close. sir. Good evening. Please Good evening, sir. switch off your audio. Please switch off your audio. Okay, and you can please switch on your video if possible. Please switch off your audio and switch on your video. Yes. So first of all, please give a, okay, you can switch on your audio now, and please give a big round of applause for your performances. Yes, please clap for yourself. You performed really well. I was so impressed when I saw at least 10 people scored 10 marks, like 10 out of 10. Yes, give a big round of applause for yourself. Everyone. अपने लिए जोरदार. Very good. Yes. Okay, fine then. Okay, and Saksham, very good. You performed also really well. You scored 9 marks out of 10. Am I right? Yes. Yes, yes. Okay, so guys, yes, Saksham, were you saying something? No, sir. एक सेकेंड. यस, तो गाइज अब हमको स्टार्ट करना था अपना इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर. तो इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो in your physics there are basically 4 chapters. First is the electricity, second is the magnetic effects of current, and third is the quite easy chapter light, and then human and the colorful world. It is completely biological. Okay, nothing typical in that chapter. So guys, let's start with your this chapter, which is electricity. Okay, एक second. Guys, can you give me just 1 minute? एक सेकेंड. एक बच्चे को थोड़ी दिक्कत आ रही है. Yes, sir. एक बच्चा एंटर नहीं हो पा रहा है. एक सेकेंड. खुशी अपनी पर्सनल बातें कहीं और जाके करे. पर्सनल बातें नहीं कर रही, शांत है. चुप हो जाओ. कौन सी पर्सनल बातें हो रही है यहाँ पे? आज सब पता है मुझे. हो गई है सर. कोई बात नहीं. गुस्सा नहीं खुशी. कोई बात नहीं. ठीक है. अच्छा देखो, अब हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की बात चल रही है. देखो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास क्या होता है, तुम सबको इतना तो पता ही होगा यार कि देखो जैसे कोई भी मेरे पास एक एलिमेंट होता है, जैसे सोडियम की मैं बात करूं या क्लोरीन की मैं बात करूं, तो सोडियम हमेशा, अरे ये सक्षम तुम इतने गोरे क्यों लगते हो यार कैमरे में, इतने गोरे तो हो नहीं रही है. तुमने कैमरे में कोई सेटिंग कर रखी है ना, सच बताओ. वहां से फिल्टर लगा रखा होगा पक्का. Definitely, I can't admit that. Something is there. I filter. Okay, chalo. So in the electricity, you know very well, whenever you have a sodium atom, so sodium lose the electron or gain the electron. Tell me that. Sodium always lose the electron or gain the electron. Sodium. Lose. Okay. So if you have a sodium atom, sodium is 11, right? So it means sodium has an atomic number of 11.
So can I say its electronic configuration is 281? So if its electronic configuration is 281, so it can lose the electron to gain the stable configuration, right? Yes, sir. So it means after losing one electron, can I say sodium become Na plus, which is sodium ion? I told you this thing in the 9th class. Yes, So it sir. means this is a charge, yes or no? This Yes, sir. positive, the presence of positive one, it is the charge. And suppose if I talk about chlorine, so chlorine can gain that electron, so it become a negative charge. So this is what? These are the charges. Okay. So whenever any atom lose or gain the electron, it is called charge. तो for electricity, तो कोई भी मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी होता है तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए मेरे पास क्या होता है? चार्जेस रिस्पॉन्सिबल होता है. Charge. Okay? तो अब मेरे पास ये जो चार्ज है, एक सेकेंड, तो मेरे पास चार्ज देखो. अब इफ आई से व्हाट इज चार्ज, तो कोई बता सकता है व्हाट इज चार्ज? अभी तो चलो मैंने केमिस्ट्री की लैंग्वेज में समझाया व्हाट इज चार्ज, तो कोई एक्सप्लेन कर सकता है? यस Sir, So movement gaining of or losing electrons. of electrons. yes. So can I say the appearance of something, whenever any element lose or gain the electron, so a charge appear on एक सेकेंड एक्चुअली एक स्टूडेंट का मैसेज आ रहा है, एक सेकेंड बस. yes, so what I was saying about the charges. तो अब देखो, अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ ना, तो चार्जेस, क्योंकि हमने फिजिक्स स्टार्ट करी है, तो चार्जेस का मतलब होता है इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ फोर्स. इसका क्या मीनिंग है? जैसे कोई भी किसी भी बॉडी पे चार्ज होता है, जैसे मान लो मैंने तुमसे बोला कि मेरे पास एक ये बॉडी है, इस बॉडी पे कितना चार्ज है? पॉजिटिव. मेरे पास एक दूसरी बॉडी है, इस पे कितना चार्ज है? नेगेटिव. तो बताओ ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर और दे आर रिपेलिंग ईच अदर? टेल मी. Attracting. Yes, definitely. So if they are attracting each other, it means it is because of charge, right? Without charge क्या ये attractive force possible हो सकता था? Yes, everybody. No, sir. No. No, sir. So it means, so how can I define the charge? So charge is the simple inherent property of any matter which is responsible for the force of attraction or repulsion, right? So how many type of charges are there total? Obviously you know them. 2 charges. Yes, positive, negative. So same charges repel each other or same charges attract each other? Same charge is Repel. And opposite charges obviously attract each other. Attract each other. Any doubt in this? No, sir. No, sir. So Sir, charge before- की definition एक बार repeat कर दो. Yeah, I'm telling you. So write first charge. तो लिखो it is an inherent property. It is an inherent property of any object. It is an inherent property of any object or matter which is responsible for force of attraction and repulsion. Which is responsible for force of attraction and repulsion. Okay? तो कोई भी अगर मेरे पास चार्जेस होगा तो उस पे मेरे पास क्या होता है, उस पे अट्रैक्शन और रिपल्शन लग सकता है. डिपेंड्स कि वो कौन सा चार्ज उस पे है, पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है. ओके? तो पॉजिटिव चार्ज कब आता है? व्हेन इट लूज द इलेक्ट्रॉन. और नेगेटिव चार्ज कब आता है? व्हेन इट गेन द इलेक्ट्रॉन. Gains electrons. ओके? तो अब देखो नाम ही इसका क्या है, चैप्टर का नाम क्या है? द चैप्टर नेम इज इलेक्ट्रिसिटी. तो देखो जब भी मेरे पास कहीं पे चार्ज होते हैं, तो जब भी चार्ज मेरे पास फ्लो करते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह, तो whenever charge flow from one point to another point, it is called electricity. It is called current. Okay? तो करंट कब आएगा? देखो जैसे कि मेरे पास दो वायर है. Okay? Listen very carefully. If I have a two wire, एक वायर ये है और एक वायर ये है, तो इस वाली वायर के अंदर एक सेकंड में कितने चार्ज पास करे? 5. इस वाली वायर में एक सेकंड के अंदर कितने चार्ज पास करे? 100. एक सेकंड में 100 चार्ज पास कर गए और इसमें एक सेकंड में 5 चार्ज पास करे. तो करंट ज्यादा किस में आएगा? ए में या बी में? A में.
ए में नहीं। 5 गए थे, बी में 100 गए थे। बी में बी में सर बी में B में भाई 1 सेकंड में अगर 100 चार्ज पास कर रहे हैं तो पता नहीं 100 सेकंड में तो पता नहीं कितने पास कर जाएंगे, फिर तो 1 घंटे में पता नहीं कितने पास कर जाएंगे। इसका मतलब मोर इज द चार्ज, मोर इज द करंट, और मोर इज द करंट मीन सिंपल इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? तो इलेक्ट्रिसिटी मेरे पास क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कोई लिखेगा नहीं अभी, कोई लिखेगा नहीं, राइट। तो चार्ज सर लिख रखा है। अच्छा लिख रखा है, वेरी गुड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 1 सेकेंड, मेरे पास कोई भी वायर है तो इलेक्ट्रॉन चलते रहते हैं, राइट, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। तो अगर मान लो अभी जैसे सक्षम में स्टाइल मार रहा है, ठीक है, तो मान लो सक्षम के एक बाल के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो अगर सक्षम के एक बाल पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो बताओ इसके एक बाल पे एक इलेक्ट्रॉन जो आया तो कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा। ये एक बाल नहीं है, बहुत सारे बाल है, ठीक है। तो एक बाल पे तो एक इलेक्ट्रॉन आया तो एक इलेक्ट्रॉन पे भी तो कुछ ना कुछ चार्ज होता होगा, राइट। तो एक 1.6 इलेक्ट्रॉन पे, यस वेरी गुड, 18 coulombs. यस 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम, 19 coulombs. ओके। तो चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलम। सी से जो मैंने Coulombs. रिप्रेजेंट किया है कूलम। इट इज एसआई यूनिट। तो व्हेनेवर आई टॉक अबाउट चार्ज सो यू विल ऑलवेज से कूलम। कूलम का मतलब क्या होता है, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, ओके। चार्ज देखो 1.6 into 10 की पावर माइनस 19, इसका मतलब 0.00000000019 बार करते चले जाओ तब जाके इतनी वैल्यू। क्या ये वैल्यू कोई मायने रखती है? अगर मेरे हाथ में 100 इलेक्ट्रॉन भी आ जाए तो उसकी उनकी कोई वैल्यू है क्या? वो कुछ मैटर करते हैं मेरे सामने? नहीं सर, नहीं। इतने नहीं। छोटे से नहीं। इलेक्ट्रॉन की क्या वैल्यू? भाई तुम्हारी तो वैल्यू ही 10 की पावर माइनस 19 तक है, ठीक है। तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन में बहुत ही छोटी वैल्यू होती है। किसी को कोई सर डाउट है बुक इसके में अंदर? 10 टू द पावर 18 दिया हुआ है। नहीं नहीं नहीं, वो माइनस उन्होंने अप्रोक्सीमेट ले रखा है, ठीक है। तो 1.6 अच्छा। 19 ही है. माइनस 19 होता है एक्चुअली, ठीक है। ठीक है सर। कोई डाउट है इसके अंदर? No sir. नो सर। ओके, तो दिस इज ओनली अबाउट द इलेक्ट्रिक। अब लिखो इलेक्ट्रिसिटी, नीचे लिखो इलेक्ट्रिसिटी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। यस, आई तो वो होप तो यू मैं हैव नोटेड इट डाउन। वो तो इलेक्ट्रिक करंट यस हुआ ना. सर, हाँ, अरे इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट एक ही बात होता है, ठीक है। एक ही बात होती है। हाँ, तो अब मेरे पास क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट। So what is the meaning of that? So as I already told you, amount of flow of charge per unit time. एक सेकंड में कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर सेकंड में कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं, that is called electricity. तो लिखो the rate of flow of charge, rate of flow of charge, एक सेकंड में कितने चार्ज फ्लो कर जाएंगे, the rate of flow of charge. रेट का मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिकली टाइम। कुछ बच्चे बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकंड। अरे पर सेकंड लगाने की जरूरत नहीं है, रेट ऑलरेडी बोल दिया है। रेट का मतलब अपने आप में क्या होता है, रेट का मतलब अपने आप में टाइम ही होता है, टाइम। ओके। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, ठीक है, दिस इज करंट। तो अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, तो Q मींस Q upon चार्ज, T। यस, एंड T मींस टाइम। तो I is equal to Q by T. How much charge is flowing per unit time? This is called current. Okay? तो ये ऊपर का मीनिंग क्या है, चार्ज, कितना Q चार्ज, क्या है? कितना व्हाट, चार्ज। Q का मतलब Q चार्ज है सर। चार्ज, चार्ज, यस, ठीक है सर। ठीक है। और I का मतलब क्या है, करंट। तो देखो अब हमारे पास क्या है, अब करंट की ऐसा यूनिट क्या बन जाएगी, देखो चार्ज को तो हम कूलम Coulombs लेते per हैं, एम्पियर। कूलम, और नीचे क्या है, Per टाइम, second. तो टाइम का मतलब सेकंड, तो कूलम पर सेकंड हो जाएगा। लेकिन अब जब हम इसकी ऐसे यूनिट जैसे हमने बोला ना, Ampere. जैसे हमने एक एम्पियर। सेकंड, लड़ लो आपस में लड़ लो, वेरी गुड। तो इसकी जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, कूलम पर सेकंड। जब ये सेकंड ऊपर आएगा तो CS -1 हो जाएगा। तो इससे एक साइंटिस्ट नाराज हो गया, उस साइंटिस्ट का नाम था एम्पियर। एम्पियर ने बोला अच्छा करंट के बारे में बताऊं मैं, और नाम तुम कूलम का ले लो बार बार। तो इसको खुश करने के लिए बोला गया अच्छा चिंता मत कर, करंट की ऐसा यूनिट कूलम पर सेकंड भी होती है, और कूलम पर सेकंड का मतलब अपने आप में क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। तो एम्पियर भी अगर कोई लिखेगा, मतलब ए भी अगर कोई लिखेगा तो भी उसका मीनिंग क्या होगा, कूलम पर सेकंड ही होगा, ओके। तो करंट Yes, की sir. ऐसा यूनिट एम्पियर भी होती है और कूलम पर सेकंड भी होती है। तो वी कैन राइट बोथ दी वर्ड्स,
कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। No, sir. नो सर। ओके, तो ये मेरे पास क्या है, दिस इज मेरे पास करंट। अब देखो हमारे पास क्या है, कभी नोटिस किया है, जैसे मान लो मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, कभी नोटिस किया जैसे सिल्क का कपड़ा होता है या सिल्क का कपड़ा और मेरे पास कोई रॉड होती है, तो जब भी मैं सिल्क को रगड़ता हूँ तो उसके अंदर थोड़ी सी चिंगारी सी निकल के आती है, कभी नोटिस किया है अंधेरे यस में? सर। Yes, sir. Yes, तो sir. जो हमने तो रब ब्लैंकेट किया, में रात में एग्जैक्टली, ब्लैंकेट में यस, होती है। वेरी गुड। कभी कभी जो रजाई होती है, वेरी गुड, तो कभी कभी ऐसे रगड़ने से क्या आती है, थोड़ी सी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बनकर आती है, तो इसका मतलब यस ये क्या हुआ है, इसे हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। यस। सर प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? क्या? प्रॉपर डेफिनेशन? हाँ लिखवा रहे, तो इट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ चार्ज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, बिकॉज ऑफ रबिंग। तो मेरे पास क्या आ रहा है, चार्ज निकल के आ रहा है, तो इसका मतलब क्या बोलना है, मैं प्रोडक्शन ऑफ चार्ज बाय रबिंग टू बॉडीज को रगड़ना, ठीक है ना, आपस में, तो उससे क्या होता है, मेरे पास चार्ज निकल के आता है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, क्यों? क्योंकि जब हम कोई, जैसे मान लो हाथ को हम ऐसे करते हैं, तो ये रबिंग हो रही है, फ्रिक्शन आया ना, फ्रिक्शन, एक रुकावट, तो ये इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने फिजिक्स की लैंग्वेज में एक स्टैंडर्ड तय किया हुआ है, एक सिल्क का कपड़ा और एक रॉड। तो हमने देखा जब हमने सिल्क और रॉड को आपस में रगड़ा, तो सिल्क पे कौन सा चार्ज आया मेरे पास, नेगेटिव। सिल्क पे कौन सा चार्ज आया मेरे पास, नेगेटिव, और रॉड पे कौन सा चार्ज आया मेरे पास, पॉजिटिव। तो कभी कभी फिजिक्स के अंदर हम एक और डेफिनेशन बोलते हैं, व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज। सो आफ्टर रबिंग अ सिल्क टू द रॉड, so the charge acquired by the rod, it is called positive charge, and the charge acquired by the silk, it is called negative charge. Okay, very simple. तो जो सिल्क चार्ज लेकर आता है वो क्या होता है, नेगेटिव, और जो रॉड लेकर आता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। तो इट इज अ स्टैंडर्ड इन द फिजिक्स। कोई दिक्कत है इसके अंदर? भाई हम No, केमिस्ट्री sir. के अकॉर्डिंग नहीं बोल सकते ना, केमिस्ट्री फिजिक्स के अंदर भी तुम यही बोलते हो कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो केमिस्ट्री में क्या फर्क रह गया फिर? तो इसलिए इसके लिए हमने स्टैंडर्ड मान रखा है, जब भी हम सिल्क और रॉड को ऐसे रब करते हैं, तो सिल्क पे कौन सा चार्ज आएगा हमेशा, यस, Negative. और रॉड पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। पॉजिटिव। Positive. पॉजिटिव। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. यस सर। एनी सिंगल डाउट? ऋषभ No, अपनी sir. जरा एक सेकंड, हाँ ऋषभ, वहां पे ना एक वो होगा ऑप्शन माइक का, उसे ऑन करो एक बार। So on है। हाँ, एक सेकंड, एक और ऋषभ है, ऋषभ राइट साइड में ना एक ऑप्शन होगा माइक का, उसे ऑन करो एक बार। राइट साइड में वहीं पर ही बना होगा माइक का, तुम्हारा माइक अभी ऑफ हो रखा है तो मैं तुम्हारी आवाज सुन नहीं सकता, एक बार जरा उसे ऑन करो। हाँ बोलो कुछ। हो गया। ओके हो गया। से हेलो। हेलो। हाँ ठीक है आवाज आ रही है। ओके ठीक है, तो जब पूछूंगा तो ऑन कर लेना, अभी ऑफ कर लो, जब क्वेश्चन पूछूंगा तो ऑन कर लेना, ठीक है, अभी ऑफ कर लो। क्या आपके रिश्ते है क्या? ठीक है, किसी को क्या? क्या कह रही है दीक्षा? क्वेश्चन पूछा। सर इसका भी सरनेम गोस्वामी है, ये आपका रिलेटिव है क्या? नहीं पता नहीं कौन है। अच्छा देखो, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? यस, नो सर। ठीक है, तो ये है मेरे पास, यस वैसे रिलेटिव है मेरा, ठीक है, मेरा भतीजा है वो। ठीक है भाई, आप थोड़ा तेज बोलो। हाँ ठीक है भाई, सबको यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं है? क्लियर है सब कुछ? नो सर। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारे पास पूरा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ना एक होता है इलेक्ट्रोस्टैट। अब ये इलेक्ट्रोस्टैट क्या होता है, तो सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे, आई होप सबने नोट डाउन कर लिया। देखो एक ना मेरे पास फिजिक्स की ब्रांच होती है, जब तुम 12th में गलती से, अगर तुम्हें साइंस मिल गई तो अगर तुम्हें गलती से साइंस मिल गई तो मेरे पास एक ब्रांच आती है जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स। तो ये इलेक्ट्रोस्टैट का मतलब क्या होता है, स्टैट का मतलब रेस्ट और इलेक्ट्रो का मतलब चार्जेस। तो जब भी हम ये डिस्कस करें कि चार्जेस रेस्ट में
चार्जेस मूव नहीं कर रहे, चार्जेस हमेशा रेस्ट में है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैट. ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट? सो व्हेनेवर चार्जेस in आर rest. एट द रेस्ट, तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैट. ओके. अच्छा, मुझे मान लो एक चार्ज मेरा यहाँ पर है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज, सपोज कर लो, और एक चार्ज मेरा यहाँ पे, ये भी मेरे पास मान लो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, कोई भी दो चार्जेस है, ठीक है, एक चार्ज ये रहा, एक चार्ज ये रहा, तो दो चार्ज है, और मान लो इनके बीच का कोई डिस्टेंस है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, मान लो वो मुझे दे रखा है, इनके बीच का एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, और वो डिस्टेंस मेरा कितना है? मान लो इट इज गिवन टू आर. एक डिस्टेंस दे रखा है मुझे, और वो डिस्टेंस मेरा कितना है? दिस इज कॉल्ड आर. ठीक है, तो अब ये वाला जो चार्ज है 1 वाला और ये 2 वाला, ये 1 वाला चार्ज 2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, और ये 2 वाला चार्ज 1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है. जैसे मान लो सक्षम है, मान लो सक्षम रास्ते में जा रहा है, इसको सामने से कोई दिखा, तो जो इसका सामने से दिखा, तो इसका मतलब सक्षम क्या उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा? स्टाइल से जैसे ही सीधा चल रहा था, अभी ये स्टाइल मार के चल रहा है, पूछो मत, एकदम लहर मार रहा है, तो इसका मतलब इसने उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करी. अच्छा, जो सामने से आ रहा था वो भी कह रहा ओ वाओ, तो उसने भी उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करी. इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो एक पर्टिकुलर कोई फोर्स होगा ना, किसी पर्टिकुलर फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे, खुशी. तो वो जो एक हो जाओ, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो जो अट्रैक्ट है, तो वो क्या होता है? फोर्स. ओके, तो वो जो अट्रैक्ट होता है वो क्या होता है मेरे पास? वो होता है फोर्स. तो ऐसा देखा गया, वो इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस. ठीक है, मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर मतलब ज्यादा होता है. याद आया ग्रेविटेशन 9th क्लास में? 9th क्लास में ग्रेविटेशन याद आया? Yes, sir. जितना ज्यादा मास होता है उतना ही ज्यादा फोर्स लगता है. तो उसी तरीके से जितना ज्यादा मेरे पास चार्ज का प्रोडक्ट होगा, उतना ही ज्यादा मेरे पास फोर्स होगा. किसी को डाउट है इसके अंदर? तो मोर इज द चार्ज, मोर इज द चार्ज, मोर इज द फोर्स. कोई डाउट है इसके अंदर? No, sir. नो सर. आर यू श्योर? Sir. हाँ, सर दोनों चार्जेस तो सेम है ना, तो वो अट्रैक्ट क्यों करेंगे? अरे अट्रैक्ट और रिपल्सिव, अट्रैक्शन फोर्स या फिर रिपल्सिव फोर्स, मैं दोनों फोर्स की बात कर रहा हूँ. ठीक है, अगर ये दोनों सेम चार्ज है तो रिपल्शन लगेगा, रिपल्सिव फोर्स, और अगर ये दोनों अट्रैक्टिव है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव है, तो अट्रैक्टिव फोर्स आएगा. गॉट इट? सर आवाज बहुत आ रही है. हाँ, एक सेकंड सर एक एस सेकंड. इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 वाला समझा दो आप वापस हाँ, थोड़ा. देखो मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो दो छोटे छोटे चार्जेस हैं, बहुत छोटे छोटे चार्जेस हैं, तो अगर दो बहुत छोटे छोटे चार्जेस हैं, तो जितना छोटा चार्ज होगा, क्या वो फोर्स ज्यादा लगा सकता है? मान लो कहीं पे आस्था जा रही है, ठीक है, और एक कहीं पे सुई दिखी है, सुई के ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है, क्या वो सुई आस्था को अट्रैक्ट कर सकती है कि आओ आओ मेरे पास आओ? नहीं ना. तो इसका मतलब छोटा सा चार्ज है तो छोटा फोर्स होगा. अच्छा, अगर मान लो एक बहुत बड़ा चेरी काउंटी है, पूरी चेरी काउंटी पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, पूरी चेरी काउंटी पे, आस तो नेगेटिव है ही, आस तो हमेशा नेगेटिव सोचती है, तो आस रास्ते में जा रही थी, तो बताओ चेरी काउंटी आस्था को अट्रैक्ट करेगी नहीं करेगी? हाँ सर. करेगी. इसका मतलब इसका मतलब जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा फोर्स. एम आई राइट? तो वही तो लिखा है, जितना कम चार्ज होगा उतना कम फोर्स होगा, और जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा. तो इसे ही तो बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. राइट? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? मोर इज द मैं कुछ चार्ज. नहीं करा यार, आराम से चल लिया, आराम से. ठीक है भाई, कोई बात नहीं, कोई चुप हो जाओ. तो मोर इज द चार्ज, मोर इज द फोर्स. अच्छा, फोर्स. अब मुझे एक बात बताओ, अगर दो चार्ज के बीच के डिस्टेंस को मैंने बढ़ा दिया, अगर दो चार्ज के बीच के डिस्टेंस को अगर मैं बढ़ा दूंगा, तो मुझे एक बात बताओ, अगर दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो उनके बीच का अट्रैक्शन ज्यादा होगा या कम होगा? तो सोचो. कम होगा. अगर दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस मैंने बढ़ा दिया, तो ऑब्वियस सी बात है ना, कम होगा. राइट? Yes, sir. यस सर. यस सर. हाँ, एक सेकेंड.
यस, सो व्हाट आई वाज सेइंग, इसका मतलब इतना कंफर्म्ड हो गया है, अगर मेरे पास जितना ज्यादा चार्ज है उतना ज्यादा फोर्स, और अगर दो चार्ज को मैं डिस्टेंस दूरियां बढ़ गई, अरे अगर दो लोगों के बीच में दूरियां बढ़ गई तो क्या फोर्स लग पाएगा? नहीं लग पाएगा ना। समझ में आया? जैसे मान लो सक्षम है, सक्षम की कोई बेस्ट फ्रेंड है, तो सक्षम चला गया नागालैंड और इसकी बेस्ट फ्रेंड चली गई श्रीलंका, खुशी। तो अगर ये श्रीलंका चली गई तो क्या इनके बीच में कोई अट्रैक्शन लग पाएगा, कोई रिपल्शन लग पाएगा? नहीं। तो इसका मतलब फोर्स ही नहीं रहा, दोस्ती नहीं तो फोर्स क्या रहेगा? तो इसका मतलब इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना कम फोर्स। याद आया स्क्वायर के अकॉर्डिंग वही ग्रेविटेशन जो पढ़ा था? हाँ सर, यस ठीक है? सर, तो ये Yes, इक्वेशन sir. नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। ग्रेविटेशनल यस कांस्टेंट। एग्जैक्टली। लेकिन अब यहाँ पे तो कुछ और लगना चाहिए, वो तो वहां पर था ना ग्रेविटेशन, ये तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रोस्टैट है। तो जब तुम दोनों को कंबाइन कर दोगे तो दोनों को कंबाइन करने से क्या आएगा? Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर है, राइट? यस यस सर, अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हमेशा क्या लगाते हैं? के 1 अपॉन तो यहाँ पे हमारे पास क्या लगेगा? एक K लगा, और इस K को हम क्या बोलते हैं? इट इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ओके, इट इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, और इसी को हम क्या बोलते हैं? जो कूलम था, कूलम ने ये लॉ दिया है, सो दिस इज कॉल्ड कूलम्स लॉ। ओके प्यारे प्यारे बच्चों, so what is a Coulomb's law? Whenever there are two charges separated by a distance, then the force experienced by it is equal to product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. तो F सर is एक equal बार to, रिपीट कर दो। एनसीईआरटी में है। नहीं, ये फाउंडेशन है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा पोर्शन है। सर इसको कहते क्या है? Coulomb's law, Coulomb's law. सर जूल्स लॉ भी तो है। It is a electrostatic constant K, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? इज इक्वल टू 9 into 10 की पावर 9। ओके, तो 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। रिमेंबर दैट, ठीक है? ये क्यों आया न्यूटन मीटर सर स्क्वायर? के क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। देखो सर ये के का वो क्या है? के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट 9 into 10 की पावर 9, 9 into 10 की पावर 9। ओके, इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर, Yes, sir. सर कॉलम्स लॉ का क्या था पूरा? क्या? कॉलम्स लॉ का सर पूरा स्टेटमेंट। हाँ, two charges separated by a distance, two charges separated by a distance, then two charges separated by a distance, then the force experienced by the charges, then the force experienced by the charges to each other, then the force experienced by the charges to each other is equal to the product of the charges divided by, ऐसे लिखना, divided by the square of the distance between them, divided by square of the distance between them. Okay? सर एक बार रिपीट कर दो। हाँ, force experienced by charges to each other is equal to the product of the charges divided by the square of the distance between them, ओके? तो अगर मेरे को कोई से भी दो चार्ज दे रखे हो और तुम्हें डिस्टेंस पता हो तो तुम फोर्स निकाल सकते हो बहुत इजीली। कोई डाउट है इसके अंदर? सर ठीक है, तो दिस इज अवर कूलम्स लॉ। तो देखो ये के की वैल्यू क्या होती है? देखो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर कैसे आया? मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे सामने फॉर्मूला दिख रहा है सबको?
अगर तुम सबको ये फॉर्मूला दिख रहा है फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, तो मैंने ये के की वैल्यू बताई है। तो मुझे एक बात बताओ इधर देखो सारे बच्चे ध्यान से देखें, तो के का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कैन आई से दैट F into R square divided by Q1 Q2 is equal to K? Can I say that? भाई ये वाला मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये वाला इधर। हाँ देखो सर, हाँ सर। F की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। डिस्टेंस का स्क्वायर का मतलब मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। और ये कूलम, चार्ज का मतलब कूलम, तो कूलम इनटू कूलम स्क्वायर, राइट? तो वही तो लिखा है। तो के की यूनिट आ गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। सर थोड़ा सा नहीं आ रहा समझ में। अच्छा कोई बात नहीं। देखो सबको पता है, मैंने बोला F इज इक्वल टू के, एक सेकेंड, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, राइट? इतना समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। ये तो फॉर्मूला ही है सिंपल। मैंने बताया कि जो के की एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? के की एसआई यूनिट होती है 9 × 10⁹। ये तो रट्टा मानना है क्योंकि ये तो एक्सपेरिमेंटली पता की जाती है, लेकिन इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये कैसे आया भाई? के की एसआई यूनिट है ना, तो के बाकी सबको उधर ले जाओ। तो बाकी क्या लिखेंगे? F × R स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 × Q2, राइट हर्षिता? यस सर। अच्छा मुझे बताओ फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? हर्षिता, फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है ना? इंटरनेट प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, डिस्टेंस की होती है मीटर स्क्वायर, और चार्ज की होती है कूलम इनटू कूलम। तो हो तो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, सॉरी कूलम स्क्वायर। ठीक है भाई? सडान, इज इट क्लियर? सडान, इज इट क्लियर टू यू? यस सर। ओके, यस सर। वेरी गुड। तो ये क्या है? ये है मेरे पास सिंपल अपना कूलम्स लॉ। देखो कुछ टीचर ना इसको ऐसे भी लिखवाते हैं कूलम्स लॉ को कि फोर्स, जैसे याद है ना ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा था 9th क्लास में, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यस, तो इस अकॉर्डिंग भी हम लिख सकते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम इस अकॉर्डिंग भी एक्सप्लेन कर सकते हो। आई होप सबको समझ में आ रहा है। यस सर। यस सर। ऋषभ देखो एक चैट बॉक्स का ऑप्शन आ रहा है, चैट देखो, चैट कर सकते रहे हो क्या? देखो एक चैट का ऑप्शन आ रहा होगा, उसमें रिप्लाई करो। समझ में आ रहा है? यस और नो? ऋषभ, इशिता, श्रेष्ठा, एक बार जरा चैट करो। यस चैट का ऑप्शन दबाओ, चैट करो एक बार। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यस और नो? वेरी गुड हर्षिता। ऋषभ वहीं पर एक ऑप्शन होगा, देखो ऋषभ वहीं पर एक ऑप्शन होगा। ठीक है गुड। ठीक है भाई, तो ये तो हुआ चलो हमारे पास सिंपल अपना कूलम्स लॉ के बारे में। देखो भाई अब जो हमें पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है सिंपल। अच्छा मुझे बात बताओ, वेरी गुड ऋषभ। अब मेरे को बताओ, मास है और मेरे पास चार्ज है, तो मास और चार्ज में क्या फर्क होता है, कोई बता सकता है क्या? थोड़ा तेज बोल लो। अच्छा, मास और चार्ज में कुछ ना कुछ फर्क होता है या सेम होते हैं दोनों? ऑफ कोर्स भाई, ग्रेविटेशन में तुमने मास लिया था, याद है ग्रेविटेशन में जब चैप्टर पढ़ा था? और यहाँ पे हम किसके, हाँ, और यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं? चार्ज। भाई देखो ग्रेविटेशन में मास पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट में चार्ज पढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली बात है दोनों के अंदर कुछ तो डिस्टेंस, कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए, राइट? So what is that main difference if I talk about mass and charge? Any guesses? Suppose this is mass. Yeah. सर मास की एसआई यूनिट कुछ और होती है, लाइक किलोग्राम होती है, और सर मास जगह जगह पर चेंज हो जाता है, पर चार्ज हर जगह पर। एक सेकंड, मास बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, वेट चेंज होता है। वेट चेंज होता है। अच्छा हाँ सॉरी। मास हमेशा, बॉस ने अपने को देख के बोल दिया तो मास हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, ठीक है?
वेट अलग अलग हो जाता है पर मास हमेशा कांस्टेंट रहता है स्वास्थ्य का, ठीक है। और चार्ज देखो नीचे उतरो, मास क्या मास कभी नेगेटिव हो सकता है? सोचो, कुछ सोचो। नो मास कैन बी नेगेटिव। No, sir. मान लो स्वास्थ्य का चार्ज नेगेटिव हो सकता मास है। क्या स्वास्थ्य का होगा -45, इज इट पॉसिबल? माइनस हो सकता है No. क्या मास? नहीं, ना ना माइनस का तो मतलब बहुत, इसका मतलब मास ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव, लेकिन चार्ज, क्या चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है? नेगेटिव। यस सर। वेरी गुड। तो नेगेटिव। चार्ज नेगेटिव भी होता है और चार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी का होता है। सर एक इलेक्ट्रॉन का ही नेगेटिव में है। अच्छा देखो, मास की वजह से कौन सा फोर्स लगता है? कैन आई से ग्रेविटेशनल फोर्स? यस सर। F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में r²। तो मास की वजह से Yes, कौन सा sir. अट्रैक्शन लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। लेकिन चार्ज की वजह से कौन सा फोर्स लगता है? बताओ, अभी तो कराया था। आई जस्ट टोल्ड यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यार। इलेक्ट्रोस्टैटिक। यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलो या इलेक्ट्रिक फोर्स बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है इसके अंदर। अच्छा, ये हमेशा अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा? जैसे कौन अच्छा सा? बताओ, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स सर मास अट्रैक्टिव होगा और चार्ज रिपल्सिव होगा। नहीं, दोनों होगा ना। चार्ज वाला तो दोनों हो सकता है भाई, चार्ज वाला तो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो हाँ, सकता है। सर। कैसे? अगर मान लो दो पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्शन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाए तो अट्रैक्शन, ठीक है। गॉट इट? यस Yes, यस sir. सर। अच्छा, मास सर, हमेशा ऐसा किस में unit- दिखाते हैं? केजी में, केजी में। लेकिन चार्ज हमेशा किस में दिखाते हैं? कूलम्स। कूलम। कूलम्स में। गॉट इट एवरीबॉडी? यस सर। एनी सिंगल डाउट हियर? नो सर। ओके, तो अब बताओ स्वास्तिका, व्हाट इज करंट? फ्लो ऑफ हाँ हाँ, फ्लो ऑफ, सांप की मौसी, सर फ्लो ऑफ पार्टिकल पार्टिकल्स। फ्लो ऑफ एनीथिंग। फ्लो ऑफ चार्ज। अच्छा, Flow of फ्लो ऑफ charges. एनीथिंग, इसका मतलब ये करंट है। करंट। फ्लो ऑफ एनीथिंग हो गया ना ये भी तो। हाँ तो सर करंट, हाँ सर करंट है। अच्छा, ये करंट है, फ्लो ऑफ एनीथिंग। वेरी हाँ, गुड। फिर तो ऐसे आज दिल है पानी पानी। चार्ज। रेट फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक करंट हुआ ना सर, वो तो इलेक्ट्रिक करंट हुआ। थ्रू एनी हाँ, क्रॉस very good. सेक्शन। वेरी गुड। विधानसभा चल रही है ना, एकदम बंद कर दो। वेरी गुड, अच्छी बात है, सब एक साथ बोलो। तो जब भी हमारे पास चार्ज होते हैं तो चार्ज की वजह से जो मेरे पास आता है वो आता है मेरा करंट, ठीक है। अब देखो, करंट भी ना मेरे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट करंट, एक होता है अल्टरनेटिंग करंट। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। देखो, जब तुम जैसे मान लो हर्षिता है, ठीक है। हर्षिता एक बार्बी डॉल खरीद के लेकर आई। हर्षिता को बार्बी डॉल से खेलने का बहुत शौक है, ठीक है। तो हर्षिता ने बार्बी डॉल खरीदी, तो उसने कहा चल चल के दिखा, लेकिन वो बार्बी डॉल चल नहीं रही। इसने हर्षिता ने 2 दिन थप्पड़ मारे उसके, चल, तो वो चल ही नहीं रही। तो इसने ध्यान से नोटिस किया क्यों नहीं चल रही वो, क्योंकि इसके पीछे जो सेल डाले हैं वो सेल वीक हो गए। तो हर्षिता कह रही अच्छा ये बात है। तो फिर हर्षिता ने पैसे लिए और ये नीचे से सेल खरीद के लेकर आई और उसने बार्बी डॉल के अंदर डाल दिए। तो जैसे इसने बार्बी डॉल के अंदर डाले, एकदम वो कूद पड़ी बार्बी डॉल। मजा आ गया बार्बी डॉल को। बार्बी डॉल एकदम कूद मारी पूरा से, उसने चेरी काउंटी के 4 चक्कर लगा दिए बार्बी डॉल ने। क्यों? क्योंकि नई नई बैटरी थी। तो इसका मतलब एक चीज तो साफ देखो, जो सेल से करंट आ रहा सर है ना, हर्षिता तो चेरी काउंटी में रहती ही नहीं है। हाँ तुम चुप हो जाओ, तुम्हें नहीं पता रहती है वो। पटक के। तो इसका मतलब जो सेल से करंट आ रहा है ना, उसे क्या बोलते हैं हम? डायरेक्ट करंट, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे? डायरेक्ट करंट। DC। डायरेक्ट करंट का मतलब जिसकी चाहे तुम कभी भी देखो उसकी वैल्यू कभी चेंज हो ही नहीं सकती। तो DC हमेशा देखो, जिसका वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। जैसे मान लो मैं एक ग्राफ दिखाऊं, इस तरीके से मुझे ध्यान से देखेंगे। अगर मैं एक ग्राफ दिखाता हूँ तो जिसकी वैल्यू, जैसे मान लो तुम 5 सेकंड बाद आए, 10 सेकंड बाद आए, तो चाहे जिस तुम कभी भी आए, मान लो ये करंट है और ये टाइम है। टाइम ऐसे बढ़ रहा है, करंट ऐसे बढ़ रहा है। अगर मैंने तुमसे बोल दिया कि मान लो मेरा करंट कितना आ रहा है 10, तो हर एक सेकंड में करंट कितना रहेगा? 10 ही रहेगा। 10। चाहे तुम 5 सेकंड बाद आओ, चाहे तुम 10 सेकंड बाद, चाहे 15, चाहे 20। तो जिसमें करंट क्या रहता है? कांस्टेंट। करंट कभी चेंज नहीं होता। when current remains the same, so this is called direct current. Okay, this is called direct current. So when the value remains constant, this is called direct current. Got it everybody? यस सर। लेकिन हमारे घरों में क्या होता है? पहले हमारे घरों में भी डायरेक्ट करंट आता था, AC। लेकिन
कौन है? अब देखो, अब हमारे पास क्या है, एक हमारे पास होता है अल्टरनेटिंग करंट। ये अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? देखो देखो हमारे घरों में ना अल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई होती है, तो वो अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में जाता है। तो देखो ऊपर जाएगा पॉजिटिव, फिर जाएगा नेगेटिव, फिर जाएगा पॉजिटिव, फिर दोबारा से जाएगा नेगेटिव। तो अल्टरनेटिंग करंट इस तरीके से चल रहा होता है। तो इसका मतलब किसकी वैल्यू चेंज नहीं होती? अल्टरनेटिंग करंट की या डायरेक्ट करंट की? डायरेक्ट करंट की। डायरेक्ट करंट की। डायरेक्ट करंट की वैल्यू तो कांस्टेंट रहती है, और अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू क्या होती है? चेंज होती रहती है। देखो इतने सेकंड में यहाँ पर है, अगले सेकंड में ऊपर है, अगले सेकंड में यहाँ पर है, अगले सेकंड में नीचे है। तो इसका मतलब ये मेरे पास साइकिल के अकॉर्डिंग चलता है। अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू हर टाइम चेंज होती रहती है। तो जो तुम्हें मीटर दिखाते हैं ना, वो मीटर एक तरह से एवरेज वैल्यू होती है उसकी, ठीक है? तो हम अल्टरनेटिंग करंट को क्यों यूज करते हैं भाई? डायरेक्ट करंट क्यों नहीं यूज कर लेते? हमारे घरों में क्यों होती है सप्लाई अल्टरनेटिंग करंट की? सर फ्यूज हो जाएगा। अप्लायंस को नहीं, ये क्या बात हुई? नहीं, सर हर अप्लायंस जो होता है जो देखो इलेक्ट्रिक अप्लायंस होता है अल्टरनेटिंग करंट के अंदर पावर बहुत कम लॉस होता है। अल्टरनेटिंग करंट को हम कहीं पर भी भेज सकते हैं। मान लो वैष्णो देवी पे कोई डैम है, मान लो वहां से करंट आ रहा है, तो वहां से जो करंट आ रहा है उसमें कुछ लॉस नहीं होता, बहुत कम लॉस होता है अल्टरनेटिंग करंट में। डायरेक्ट करंट को आप हाईएस्ट 800 मीटर पर लेके जा सकते हो ट्रांसफर। डायरेक्ट करंट में तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। डायरेक्ट करंट में तो इतना लॉस होता है पूछो मत, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट के अंदर कोई भी करंट में इतना लॉस नहीं होता। इसीलिए अच्छा कौन सा करंट होता है, डायरेक्ट या अल्टरनेटिंग? अल्टरनेटिंग करंट अच्छा होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी, मान लो वैष्णो देवी से 1000 एम्पीयर करंट छोड़ा गया दिल्ली के लिए, ठीक है, लेकिन आते आते वो कितना रह गया? सिर्फ 400 रह गया मान लो। तो बताओ कुछ फायदा हुआ क्या? ना। तो ये तो डायरेक्ट करंट हुआ। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट क्या, 1000 छोड़ा गया और पहुंचा कितना? 960। तो अच्छा कौन सा हुआ, अल्टरनेटिंग करंट या डायरेक्ट करंट? Alternating. क्योंकि इसके अंदर पावर लॉस क्या होता है? कम होता है। तो सबसे पहले लिखो डायरेक्ट करंट, लिखो अ करंट हुज वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। लिखो अ करंट whose value remains constant with time. A current whose value remains constant with the time is called direct current. डायरेक्ट करंट हमेशा कहां से निकल के आता है? बैटरी से निकल के आता है, ठीक है? वो जो तुम खरीद के लेकर आते हो 5 रुपए की, 10 रुपए की, 20 रुपए की, वो डायरेक्ट करंट देती है। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट कहां से आता है? जैसे जनरेटर चल गया, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर, तो इन सबसे क्या निकल के आता है मेरे पास? अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है? सर इसलिए बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है मतलब। एग्जैक्टली, यस, ठीक है। तो अल्टरनेट, अब लिखो अल्टरनेटिंग करंट के नीचे लिखो अ करंट whose value changes with time. A current whose value changes with time, ब्रैकेट में लिख देना फ्लक्चुएटिंग का मतलब चेंजेबल, ठीक है? ब्रैकेट को फ्लक्चुएट करती है ना, ये ऊपर नीचे, पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल, तो इसे बोलते हैं, इट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। लिखो पावर लॉस इन अल्टरनेटिंग करंट इज मिनिमम। पावर लॉस इन अल्टरनेटिंग करंट इज मिनिमम, ठीक है? ग्राफ बना लिया सबने, ये वाला जो मैंने दे रखा है? Yes sir. This is what? This is direct current and this is what? This is alternating current. Got it everybody? Sir, power in alternating current is minimum. सबसे मिनिमम होता है, ठीक है? लॉक कर दीजिएगा। What? यस सर। नहीं कुछ नहीं सर, सॉरी। Any single doubt here? No sir. तो इसका मतलब जनरेटर से क्या आता है? डायरेक्ट करंट या फिर अल्टरनेटिंग करंट? जनरेटर से ऑल्टरनेटिंग Alternating current. Alternating current. yes,
जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस, तो भाई ये हमारे पास क्या है, अल्टरनेटिंग करंट हो गया और एक मेरे पास हो गया डायरेक्ट करंट। ओके, तो भाई अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन अब आने वाला है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन। सबको करंट के बारे में पता लग चुका है। देखो अब ना हमारे पास आने वाला है सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन। देखो अभी तुमने क्या, तुम लोगों ने अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है? नहीं सर सर, थोड़ी बहुत आती है। नो सर आती है पर अच्छा सर तेज बोलो। अरे यार तुमने अब शायद अपनी वॉल्यूम कम, क्या मैं धीरे बोल रहा हूँ? सर सही बोल रहे नहीं हो। सर, बहुत तेज बोल रहा। हाँ मेरी सारी एनर्जी खर्च हो जाती है। ये तुम्हारा कंप्यूटर खराब हो गया है, गांव वाला कंप्यूटर लोकल। सर मैं अच्छा वाला फोन यूज में कर। कर रही हूँ ना। तो हेडफोन लगा लो। एक सेकंड रुको, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। रिवाइज करो, भी क्वेश्चन पूछूंगा, जस्ट गिव मी 1 मिनट। देखो भाई अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये टॉपिक बच्चों को समझ में नहीं आता। ठीक है, देखो अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि करंट को कैसे पता चलेगा कि उसे कहाँ जाना है। कोई भी करंट अगर है तो करंट कैसे पता लगता है कि उसे कहाँ जाना है। अच्छा मुझे बताओ, सबने डिफ्यूजन के बारे में पढ़ रखा है? डिफ्यूजन से क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जाते हैं, राइट? अगर खाना बन रहा है किचन में तो स्मेल आ जाती है अंदर तक, इसका मतलब वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में आ गया। बहुत सिंपल सी बात है, राइट? इसी तरीके से मेरे पास क्या है, देखो सारे बच्चे ध्यान सुनना। अब हम एक्सप्लेन करने वाले हैं पोटेंशियल के बारे में। सबसे पहले सारे बच्चे एक बात कान खोल के सुन लो, करंट हमेशा तभी फ्लो करेगा जब पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। अब इससे मैं क्या कहना चाहता हूँ बताऊंगा। करंट हमेशा कब फ्लो करता है, जब करंट हमेशा तभी फ्लो करेगा जब मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सारे बच्चे ध्यान सुने। अच्छा तुम लोगों ने ये तो सुना होगा, कभी टीचर क्या बोलती है, कभी टीचर नहीं बोलती कि बेटा यू हैव कैपेसिटी, यू हैव एबिलिटी टू टॉप द क्लास, बट अंदर अंदर वो जानती है कोई एबिलिटी नहीं है। पागल बना रही है मैडम, पोटेंशियल। सब मैडम ऐसे बोलती है बेटा यू हैव एबिलिटी टू टॉप द क्लास। तो इसका मतलब वो भी एक बंदे के लिए बोल रही है, सबके लिए बोल रही है राइट नाउ? एक पर्सन के लिए बोल रही है, सबके लिए? सबके लिए। अरे एक के लिए ना, एक ही तो आई थी। ठीक है, सबके साथ बोल सकते हैं, सबको कैसे बोल सकते हैं बेटा यू हैव एबिलिटी, यू कैन टॉप द क्लास? बच्चे समझ जाएंगे कि ओ पागल बना रही है मैडम, सब कैसे टॉप कर जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब पोटेंशियल, तो पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, जब मैं तुमसे बोलूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ध्यान रखना वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, एक पॉइंट का होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा कितने पॉइंट का होता है, हमेशा एक पॉइंट का। ठीक है, और अगर मैं तुमसे बोलूंगा पोटेंशियल डिफरेंस, अगर मैं बोलूंगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमेशा ध्यान रखना पोटेंशियल डिफरेंस कितने पॉइंट का होता है, ये हमेशा होता है 2 पॉइंट का। 2 पॉइंट्स का। ठीक है, अब ये क्या है, देखो अब ये फिजिक्स है, फिजिक्स में बस पूरी फिजिक्स के अंदर बस ये 2 डेफिनेशन ऐसी हैं जो लोगों को समझ नहीं आती क्योंकि उसको न्यूमेरिकली एक्सप्लेन किया गया है। अच्छा पोटेंशियल का मतलब कैन आई से इट इज अ काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और मैंने तुम्हें बहुत 9th क्लास में बहुत बार बताया था पोटेंशियल इज एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क। याद है किसी को? मैंने बता रखा है यस सर। जितनी एनर्जी होती है उतना ही हम वर्क कर पाते हैं। तो देखो इस पोटेंशियल को हमने वर्क के अकॉर्डिंग समझा रखा है। अब सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। सडान, सडान यस सर। हाँ सडान, मान लो तुम्हारे अगर मार्क्स आए 95, ठीक है, सपोज करो 100 में से, और मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि तुम्हें किसी से कंपेयर करना है। ठीक है, तो तुम्हें मान लो कोई बिमला नाम की लड़की है, ठीक है, और तुम्हें उससे कंपेयर करना है, और तुमने पता क्या बोला कि मेरे बिमला से 95 मार्क्स ज्यादा आए हैं, और तुम्हारे एक्चुअली में भी 95 मार्क्स ही आए हैं। तो कोई बता सकता है तो बिमला के कितने मार्क्स आए होंगे? 0 आए होंगे, पक्की बात है। इसका मतलब देखो ये जो डेफिनेशन है ना, हमें कंपेयर करके बताना होता है, और कंपेयर करना होता है किससे, जो खुद 0 है, तभी तो उतने मार्क्स। देखो अगर कोई बोलेगा मेरे बिमला से 95 मार्क्स ज्यादा आए, तो लोग ये नहीं समझेंगे ओ बिमला से 95, तो पता नहीं इसके आए कितने होंगे, क्या पता इसके आए हो 100, बिमला के 5 हो। कंपेयर करके बता रहे ना, और लोगों को पता थोड़ी था कि बिमला आई ही नहीं थी टेस्ट में। तो इसी तरीके से हमें कंपेयर करके बताना है। तो देखो हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल का मतलब एनर्जी, एनर्जी के हम किस फॉर्म रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क से। तो सारे बच्चे डेफिनेशन हम ध्यान से सुनेंगे। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितना होता है, 0। सारे बच्चे ध्यान सुने, ठीक है।
और मुझे इस एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, इस P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो तुम क्या करोगे? हमेशा डेफिनेशन रट्टा मारने से सुनो अगर बच्चे, हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, इस चार्ज को यहां से लेकर यहां तक लेकर आएंगे, ठीक है? सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे। एक चार्ज को मैं वहां से लेकर इन्फिनिटी से लेकर यहां तक लेकर आया, इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर। तो जब मैं इस चार्ज को यहाँ पे लेकर आया जहां पे मुझे पोटेंशियल निकालना है, तो इस चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लाने में मुझे जितना वर्क डन करना पड़ा, तो वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू पोटेंशियल, राइट? एनर्जी। तो दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल। सारे बच्चे ध्यान सुने, amount of work done required in bringing a unit positive charge from infinity to a particular point where we want to find out the electric potential. एक amount of सुनो सारे सुन तो ले। वो वर्क डन अगर मैं इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे amount of work done in bringing a unit positive charge from one point to another, okay, from infinity to a particular point, from one point to other नहीं, from infinity to a particular point जहां पे मैं पोटेंशियल निकालना है, it is called electric potential. और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होगा? देखो V is equal to amount of work done, right? कितना वर्क डन किया, और हम कौन से चार्ज को लेकर आए थे? यूनिट पॉजिटिव या रैंडम? यूनिट पॉजिटिव। यूनिट पॉजिटिव का भी इफेक्ट नहीं होगा ना, तो तभी तो पता लगेगा एनर्जी इज इक्वल टू वर्क। तो यहाँ पे लिखना पड़ता है यूनिट पॉजिटिव। तो V is equal to W by Q. This is what? This is potential, right? समझ में आया? Yes. अब देखो ये मेरे पास क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये क्या होगा? देखो मान लो ये मेरे पास पॉइंट है इंफिनिटी, ये है इंफिनिटी और ये है मेरे पास पॉइंट P। तो मैं इसे क्या बोलूंगा? देखो P फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। लेकिन तुम्हें पता है V इंफिनिटी क्या होता है? जीरो। तो जब V इंफिनिटी जीरो हो जाएगा तो अपने आप पोटेंशियल किसका निकल के आएगा? VP का पोटेंशियल निकल के नहीं आ जाएगा, राइट? yes sir सो इसलिए हम कंपेयर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसे ही जैसे ही P पॉइंट है, ऐसे मेरे पास दो पॉइंट है, ठीक है? तो अब दो पॉइंट है, अब दो पॉइंट के बीच में बताना है, तो अब तुम्हें इंफिनिटी से लेकर नहीं आना। अब तुम पता क्या बोलोगे? सिर्फ अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाते हैं तो जितना वर्क डन होता है वही मेरे पास क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस बार पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा भाई? ए से लेकर बी पे ले गए तुम, तो क्या बोलेंगे फिर हमसे? VB माइनस VA, राइट? अब थोड़ी जीरो होगा क्या? अब ये कोई इंफिनिटी पे है? नो। तो अब यही रहेगा। तो इसे No, इसलिए क्या बोलते? तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। और इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? एक का होता है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? सर पोटेंशियल इंफिनिटी से लाते हैं और नहीं पोटेंशियल आया डिफरेंस समझ। दो पॉइंट से। वेरी गुड, एग्जैक्टली, यस यस, ठीक है। ओके सर। तो क्योंकि पोटेंशियल हमें एक का बताना है कि तुम्हारे अंदर एबिलिटी है। सर एक और बार समझा दो, नहीं आया। अरे पोटेंशियल यार, डिफरेंस वाला। कुछ नहीं बोला मैंने, तुम्हें सर, मैं डेफिनेशन के बताऊं? अकॉर्डिंग। हाँ बताओ। देखो पोटेंशियल क्या होता है? मतलब अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, ठीक है? इन टाइम नहीं, इन टाइम नहीं है। अच्छा ठीक है, टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये होता है पोटेंशियल होता है ये। और पोटेंशियल डिफरेंस वो होता है जब हम दो पॉइंट से चार्ज लेके आते हैं, इंफिनिटी सर से ये नहीं। नहीं, जो आपने इक्वेशन करी है वो नहीं आया समझ। अच्छा, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। मेरे को पता था ये होना ही है, हर साल होता है, ठीक है? ये हर साल की बात है। सुन लो ध्यान से सारे बच्चे, बस एक एग्जांपल मैंने दिया था तुम लोगों को। अगर मैं सिर्फ ये बोलूं कि खुशी है, खुशी के अंदर कुछ ना कुछ एबिलिटी है टॉप करने की, मान लो, तो अगर मैं सिर्फ खुशी की बात करूंगा तो मैंने खुशी के कंपैरिजन किससे कर दिया? किसी गवार बच्चे से जिसके 0 नंबर आते हैं, ठीक है? जैसे आस्था मान लो, तो मैंने इसी कंपैरिजन कर दी। तो इसका मतलब, तो मैं सिर्फ खुशी की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम आस्था तो खुशी। लेकिन आस्था का नाम लेते, चलो मान लो कोई गवार बच्चे, ठीक है? तो उसके 0 नंबर है, आस्था के 0 थोड़ी आते हैं, आस्था भी आजकल टॉप कर रही है। तो इसलिए हमने क्या करा? उस पॉइंट से हम लेकर आए। तो जब भी हम एक पॉइंट का बताते हैं तो उसका कंपैरिजन किससे करते हैं? इन्फिनिटी से। लेकिन जब भी हम दो पॉइंट का बता रहे हैं, मान लो खुशी और स्वास्तिका की बात कर रहे हैं कि इनके मास का डिफरेंस क्या है? मान लो खुशी के नंबर है 95, स्वास्तिका के नंबर कितने हैं? 80। तो डिफरेंस कितने का बना? 15।
15 15 का। 15 तो ये क्या है, ये है पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट कब चलेगा, जब इनके बीच में डिफरेंस होगा, वरना करंट नहीं चलेगा। तो पॉइंट में समझ में आया, पोटेंशियल है सर। तो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल के बाद क्या आता है, पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सबसे पहले लिख लो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक सर पोटेंशियल। हो गया। सबसे पहले लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to a particular point, amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to a particular point, from infinity to a particular point is called electric potential, and its SI unit is volt. Its SI unit is volt. ओके तो उसके बाद फिर ये उतारना है तुम्हें। देखो ये जो मैंने बनाया डायग्राम पूरा, देख रहे हो हमारे बच्चों सारे, ऐसा यूनिट जो मैंने क्या है? डायग्राम बनाया है पूरा ये वाला, ठीक है। ये जो मैंने ऐसे लाइन बनाई है इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है कोई बता सकता है? व्हाट इज द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी? जीरो। ऐसा जीरो। यूनिट क्या ये है? मैंने explain किया है, राइट। ऐसा यूनिट क्या है? इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या है? Volt. जीरो वोल्ट। वोल्ट। अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस में क्या हम इन्फिनिटी लेते हैं? क्या पोटेंशियल डिफरेंस में हम इन्फिनिटी लेते हैं? नहीं लेते। नहीं सो पोटेंशियल नहीं डिफरेंस में हम लेते। 2 पॉइंट लेते हैं पोटेंशियल में सिर्फ, लेते हैं। ठीक है। यस, तो पोटेंशियल डिफरेंस में एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, तो क्या कोई इन्फिनिटी में है? Yes, sir. नहीं। तो लिखो पोटेंशियल डिफरेंस में अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड, amount of work done required in bringing a unit positive charge, in bringing a unit positive charge from one point to other, from one point to other, from one point to other, जैसे A से लेकर B तक लेकर आ गए, it is called potential difference. It is called potential difference. So सर पर हम इसे टीचर्स जो बोलते हैं उनसे कैसे मतलब कर सकते हैं पोटेंशियल और ये वाला? टीचर बोलते हैं मतलब जो मैंने एग्जांपल दिया था। हाँ सर। अरे एक लड़की की मैं बात कर रहा था, तो मैंने एक लड़की की कंपैरिजन किससे करी? जिस लड़की के 0 नंबर आते हैं, बिमला, याद आया? तो हाँ वो तो सर। हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके अंदर कितनी एबिलिटी है। अब मान लो ऐसे 2 बच्चे आ गए, मान लो एक बच्चा है जो टॉप करता है, एक बच्चा सेकंड आता है, तो अब मैडम कह रही है अच्छा तुम दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? तो अब इन्फिनिटी से थोड़ी ले रहे हैं, दोनों ही टॉपर है, एक फर्स्ट है एक सेकंड है, तो एक बच्चे के 95 मार्क्स है, एक बच्चे के 80 मार्क्स है, तो डिफरेंस कितना का बना? 80 15 बना ना, 15। हाँ तो वो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस। एबिलिटी का डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। मैं तुमसे बोलूं तुम्हारी एबिलिटी कितनी है, तो क्या ये डिफरेंस है? नो सर। ये तो पोटेंशियल है ना, तुम्हारे एक ही पॉइंट की बात चल रही है, तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 2 पॉइंट का होता है, पोटेंशियल हमेशा 1 का होता है। गॉट इट एवरीबॉडी? यस सर। यस लेकिन फॉर्मूला दोनों का सेम है। देखो क्यों, देखो हमने फॉर्मूला क्या है? V करा है, VP माइनस V, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस, जब देखो देख रहे हो ना इधर क्या लिखा है मैंने, फाइनल माइनस इनिशियल, तो इन्फिनिटी पे क्या था? पोटेंशियल 0, तो इसलिए VP क्या है? W/Q। लेकिन यहाँ पे A भी कुछ पोटेंशियल है क्योंकि दोनों ही टॉपर है, और इसका भी कुछ पोटेंशियल है, तो क्या मैं किसी को 0 कर सकता हूँ? नहीं नो नहीं, इस बार इन्फिनिटी थोड़ी है, तो इसलिए इसलिए क्या बोला गया? पोटेंशियल डिफरेंस। गॉट इट एवरीबॉडी? यस सर यस सर यस सर। और जब भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो बताओ करंट आएगा या नहीं आएगा? आएगा। आएगा। ठीक है चलो, तो ठीक है भाई, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, चलो टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, Okay. बाय बाय। बाय सर।